So hi everyone, my name is Anjali and I'm fourth year BSMS student from ISER Bhopal. I'm from biological science majors and today I wanna give you one good news. Means your counseling will begin very soon. So the dates have been given. I have informed you also, but let's inform you officially. And I want to tell you something regarding placement. So be with me. First of all, you can see your counseling will start on July 13th. Second round will begin tentatively on July 20, then third round on July 26. So counseling will start on July 13th. And for people who are taking admission, as counseling is only starting in mid of July, then of course it will there are many rounds of counseling around 13. And as per me, the counseling of NEET has also not started, so I think that uh, ये काउंसलिंग थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि स्पॉट राउंड जो होगा मेरे हिसाब से वो स्पॉट राउंड थोड़ा लेट होगा. So don't worry about all these things. It's just that I wanted to update you regarding this. Now some of the comments मैंने जो वो दीपिका के साथ वीडियो बनाया है MBBS वाला, so उसमें comments आ रहा है कुछ लोगों का regarding placements and all. और वैसे भी मैंने देखा है तुम लोग बहुत placements के बारे में पूछते हो. मैंने वैसे एक placement का वीडियो बना रखा था, बट उस टाइम इतने बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे तो शायद तुम लोगों तक नहीं पहुंचा होगा. मैंने देखा है यूट्यूब पे कि तुम लोग को बताया जाता है कि 1 करोड़ का प्लेसमेंट लगेगा, 50 लाख सालाना, पता नहीं और भी बहुत कुछ ऐसा ऐसा बहुत ही ज़्यादा एकदम कैची टाइप थंबनेल बनाया जाता है ताकि तुम क्लिक करो. ये होता है, दिस इज़ बिजनेस. यहाँ मैं तुम लोग को सच बताना चाह रही हूँ. काश 1 करोड़ का प्लेसमेंट होता, मैं भी करोड़पति होती, काश. बट ऐसा नहीं होता है. हाँ, ये सच है, ऐसा नहीं होता है. Moving further, I want you all to introduce you to this book named LLS 47 Years, Chapter Wise and Topic Wise JEE Advanced Mains Chemistry. So, as you are preparing for IIT, you must solve all the PYQs of JEE Mains and Advanced. So, this book will be very helpful for you. Why? Because it is entirely based on your new NCRT syllabus and it has 47 years, chapter wise and topic wise, advanced and mains questions. It has 146 online and 8 offline, which consists of 47 advanced and 154 mains questions. So, why this book is special? Because it has subjective problems, as you can see here. So, this will clear your concepts, and if you are preparing for board, then you must do it. It has integer value answer type question. It has numeric stem based question. It has fill ups, true and false, MCQ with one correct, multiple correct, match the following. It has assertion reasoning type questions, which will be brainstorming for you. So you can see many MCQs are there. And why this book is special? Because it has topic wise questions. See, if you have done one topic, then you can do questions of that topic and then move on to other topic. So this will be beneficial, and you can avail this combo. I'll give you the link in description, and you can avail this combo of physics, chemistry and mathematics. So it will be very helpful for your preparation, because yeah, doing PYQs is a must. So let's move on to placements now. So you people were asking me regarding placements, so I thought that let's talk about placements through this website. Placement cell of ISER-B. So you all know that ISER-B, ISER Bhopal is the only ISER which has engineering department and economics department, and hence it should have the highest placement. We have placement cell at least, but other ISERs don't have placement cell also. Most ISERs don't have. So now I am showing you my placement cell of Pfizer Bhopal, how active it is. क्योंकि दूसरे लोग तुम्हें क्या बताते हैं मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ. So this is the placement cell of Pfizer Bhopal. Let's see कौन कौन यहाँ से पास आउट हुआ है और क्या कर रहे हैं. Okay. Okay, fine. Placement. Okay. सॉरी, ये खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है. अब इसमें क्या ग्लिच है. चलो कोई नहीं, देखते हैं हम नीचे कौन कौन आया है. ये है कंटेंट फॉर प्लेसमेंट सेल ऑफ आइजर भोपाल. आई एम नॉट मेकिंग फन हियर, बट सच्चाई यही है कि प्लेसमेंट सेल है, बट प्लेसमेंट सेल एक्टिव ही नहीं है. तो मैं तुम्हें क्या बताऊं प्लेसमेंट किसका लगा है नहीं हुआ है. सब खुद ही प्लेसमेंट ढूंढते हैं मैक्सिमम, कुछ लोगों का लगता है. और ये बात बिल्कुल सच है कि नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट से प्लेसमेंट ना के बराबर लगता है. हाँ, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स में लग जाता है प्लेसमेंट. उसका डाटा अवेलेबल नहीं है, जो भी तुम्हें दिखा रहा है ऑनलाइन वो फेक है.
क्योंकि प्लेसमेंट सेल का डाटा नहीं है तो कैसे कोई दिखा रहा है डाटा तुम्हें? प्लेसमेंट सेल का डाटा रिलीज ही नहीं करता है इधर भोपाल, जब हमें नहीं बताता है तो तुम्हें कैसे पता है? ये कह रही हूँ मैं। तो जब मुझे प्लेसमेंट सेल का डाटा मिलेगा तो मैं बता दूंगी। और रीता बानी दी के साथ जो मैं वीडियो बनाई हूँ पीएचडी का, जो हार्वर्ड में पढ़ती है, वो भी तुम लोगों को बताइए कि वो प्लेसमेंट सेल में थी। प्लेसमेंट सेल बट इतना एक्टिव नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर तुम लोग आइजर को प्लेसमेंट के पर्पस से ज्वाइन कर रहे हो देन मत करो ज्वाइन। एनआईटी जाओ, आईआईटी जाओ, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स मिलेंगी। आइजर को प्लेसमेंट के उससे मत ज्वाइन करो, क्योंकि वो इंटायरली रिसर्च के लिए बना है। और तुम्हें लाइक हमें भी मोस्टली पीएचडीज़ के लिए ही मिलता है अपॉर्चुनिटी। प्लेसमेंट के लिए तो मैंने कभी सुना नहीं है कि किसी को 1 करोड़ का पैकेज लगा है या 50 लाख का पैकेज लगा है। हाँ, लग जाता है 5-6 लाख का पैकेज। जो प्लेसमेंट चाहते हैं और जो खोजते हैं उनको मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिल जाता है। बट मैं ये कह रही हूँ कि ये जो बिल्कुल ये मिथ है कि तुम्हें 1 करोड़ का प्लेसमेंट और पता नहीं सालाना 25 लाख और 50 लाख, बिल्कुल नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला है। प्लीज़ किसी को मिला है आइसर भोपाल से तो कमेंट कर देना नीचे। ये मैं बता रही हूँ। मेरा मेरा ही इंस्टीट्यूट है, मैं क्यों उसे डिफेम करूँगी? बट सच सच है। आई होप किसी का प्लेसमेंट लगे 1 करोड़ का तो मैं तुम लोगों को बहुत खुशी के साथ बताऊँगी। यही मैं क्लियर करना चाह रही थी बस। तो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एंड प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं बस वो कमेंट का आंसर कर रही थी। जो भी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ कुछ मुझे आ रहा था। पता नहीं यार, तुम लोग खुद से भी सर्च कर सकते हो। हर चीज़ के लिए यूट्यूबर्स पे रिलाई होना ज़रूरी नहीं है। खुद से भी तुम सर्च कर सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा कितना प्लेसमेंट कहाँ से हो रहा है। So that's all I wanted to tell. I hope that this video was helpful. So thank you and bye.